त्याला आता एडिट पण करावं लागेल ना. सर चालू आहे. चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. So today our topic of discussion is refraction of plane wavefront. रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन कब होता है. Whenever light changes its medium, it undergoes a deviation from its original path. This phenomenon of deviation of ray of light from its original path after changing the medium is called as reflection. Angle made by incident ray with normal is called as angle of incidence. Angle made by refracted ray with normal is called as angle of refraction. Angle made by refracted ray with the original direction is called as angle of deviation. Suppose that this is the surface xy separating two medium 1 and medium 2, refractive index of medium 1, velocity of light in medium 1, wavelength of light in medium 1, and let this is frequency nu. Whenever light changes its medium, wavelength, speed, refractive index changes, but frequency remains constant. In second medium again, frequency will be constant. And therefore, Snell's law will have sin I upon sin r equals to mu 2 upon mu 1, lambda 1 upon lambda 2, C1 upon C2, and this is relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. It means that light enters from medium 1 to medium 2. Here, light bends towards normal. Therefore, this is a denser medium. Light enters from rarer to denser medium. Light bends towards normal. It means that refractive index of medium 2 is greater than refractive index of medium 1. Okay, and this is the requisite for refraction of plane wavefront. Clear हो गया क्या? अब रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट में हमें क्या देखना है. सपोज दैट ए प्लेन वेवफ्रंट AB is incident on a refracting surface XY. Let this is refracting surface XY. A plane wavefront AB bounded by two boundary rays PA and QB. Plane wavefront AB bounded by two boundary rays PA and QB incident obliquely on the refracting surface XY. This surface is a surface separating two medium having refractive indices mu1, mu2, speed of light C1, C2, wavelength in different media lambda 2 and frequency nu se. So surface XY is that surface which separate two different medium, different refractive indices, speed and wavelength, but frequency will remain same. So plane wavefront AB bounded by two boundary rays PA and QB is incident obliquely on the surface XY. Initially, wavefront touches the surface XY at point A. This wavefront touches or strikes surface XY at point A. So we will draw normal at that point. Angle made by this incident ray with normal is angle of incidence. Okay. Now, according to Huygens principle, every point on this wavefront will act as a secondary source of light, emitting out secondary waves. So, consider the secondary wave from point B along the direction QB proceeds and reaches surface XY and touches at point C. Point B will act as a secondary source of light. It will emit secondary waves in all directions. Consider that particular wave which is along ray QB. This wave starting from point B will proceed and reaches surface XY and touches at point C. If C1 is speed of light in this medium 1, then distance BC will be C1t, because speed is equal to distance upon time. So BC is equal to C1t.
This is distance traveled by secondary wave emitted by source B up to C. Now, medium 1 is taken to be rarer medium. It means that mu2 is greater than mu1. अगर ये रेयर मीडियम है तो इसका जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम से ज्यादा होगा. बात समझ रहे हैं क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम. समझ रहे हो क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम. तो ये डेंसर मीडियम नीचे वाला है, जो ऊपर वाला मीडियम है वो रेयर मीडियम है, इसलिए स्पीड ज्यादा है. तो ये डिस्टेंस हमने BC कंसिडर कर लिया. अब ये जो पॉइंट A है, ये जो रे PA है, ये रे PA एज इट इज अगले सेम डायरेक्शन में जा सकता था अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो. अब ये ओरिजिनल डायरेक्शन है रे PA की, मीडियम बदलने की वजह से वो डेविएट हो जाएगा. बात समझ रहे हैं क्या? मीडियम बदलने की वजह से वो डेविएट होगा, पर वो हमें यहाँ पे दिखाना है कि कैसे होगा. पॉइंट A एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स. तो पॉइंट A से सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे नीचे की साइड को ऑल डायरेक्शंस में. तो A को सेंटर मानेंगे और यहाँ पे इसकी एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएंगे हेमिस्फीयर के फॉर्म में. बात समझ रहे हो क्या? यहां से रिफ्लेक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन. तो पॉइंट A भी सेकेंडरी सोर्स के हिसाब से काम कर रहा है. A और B एक ही वेव फ्रंट के पॉइंट है, इसलिए वो सेम फेज में है. B से निकली हुई सेकेंडरी वेव जो है वो टाइम t में c1t इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. अब उसी समय में A से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेव है वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि वो सेकंड मीडियम में है. सेकंड मीडियम में स्पीड कम है, तो c2t ये c1t से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. बात समझ में आई? ये जो c2t है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंडरी वेव इमिटेड बाय सोर्स A. अरे भाई क्लियर हो रहा है क्या? सोर्स A क्या है? ये सेकेंडरी सोर्स है. यहां से जो सेकेंडरी वेव्स निकल रहे हैं वो उसी समय में BC से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. इसलिए हम क्या करेंगे? राउंडर लेंगे, खोचा राउंडर लेंगे, BC इतना रेडियस लेंगे. पर वो रिफ्लेक्शन में ले सकते थे, रिफ्रैक्शन में जो अगला डिस्टेंस है वो BC से कम होना चाहिए, इसलिए इससे BC से थोड़ा कम डिस्टेंस लेंगे. बस समझ में आई? BC से कम डिस्टेंस लेंगे राउंडर में, A को सेंटर मानेंगे और यहाँ पे हेमिस्फीयर ड्रॉ कर देंगे. क्लियर हुआ? क्योंकि A से निकलने वाले वेव्स अभी रिफ्रैक्शन करेंगे, वो नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे, पर इसकी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगी उतने ही समय में उसका जो रेडियस होगा वो c1t से कम होगा, क्योंकि c1t ये रेयर मीडियम में है तो ये डेंसर मीडियम में है. क्लियर हुआ? अब हम C से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. लेट अस ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C टू दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म्ड बाय सोर्स A. अब A यहाँ पे टेंजेंट CD मान लेते हैं एट पॉइंट D ऑन द वेव फ्रंट. अब A और D को अगर जोड़ देंगे तो इस तरह से हमें एक रिफ्रैक्टेड रे मिल जाएगा इंसिडेंट रे PA का. इंसिडेंट रे PA है, उसका ये रिफ्रैक्टेड रे मिलेगा. इसी को पैरेलल यहां से आगे निकाल देंगे. बात समझ रहे हो क्या? ये जो है इसी को पैरेलल हम एक रे निकाल देंगे. अब C और D का सोचते हैं. यहाँ पे मालक फिगर निकालते हैं. A और B ये मीडियम 1 में था, तो B से निकली हुई जो रे है उसने c1t इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये मीडियम 1 में है. पर A से निकली हुई वेव उसी समय में सिर्फ c2t इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई है. ये कम क्यों है डिस्टेंस? क्योंकि ये दूसरे मीडियम में है. ये पॉइंट C मान लेते हैं, इसको D मान लिया हमने. अब C और D को हम जोड़ देते हैं टेंजेंट को. C और D ये ऐसे पॉइंट है जहां पर सेकेंडरी सोर्सेस A एंड B, इनसे निकलने वाली वेव सेम टाइम इंटरवल में पहुंच रही है. C and D are the points where the secondary waves emitted by secondary sources A and B on the same wavefront AB reaches simultaneously. That's why C and D must be in same phase. As C and D must be in same phase, this CD
act as a refracted wavefront of incident wavefront AB. क्लियर हुआ? CD act as a refracted wavefront of incident wavefront AB. This is angle of refraction R. क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट? पूरा क्लियर हो गया? C और D ये जो पॉइंट है ये सेम फेज में है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सोर्सेस A और B से पहुंचने वाली रे सेम समय में पहुंचने वाली रे है, सेम समय में पहुंच रही है ना, तो सेम फेज में होगी। तो ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स इस सेगमेंट में सेम फेज में होंगे, इसलिए वो एक वेवफ्रंट हो गई और ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट ए बी है। यहां तक कोई परेशानी? अब आगे, अब हमें एक्सप्लेनेशन तो हमारा पूरा हो गया, अब मैथमेटिकली हमें साइन आई अपॉन साइन आर भी देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी। हमें यहाँ पे ज्योमेट्री का प्रूफ नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट कंसिडर करना है। और ये हमने ले लिया नॉर्मल एम एन, जो यहाँ पे हम ले रहे नॉर्मल एम एन। अब ये इंसिडेंट रे पी ए था, देखो इंसिडेंट रे पी ए, इट मेक्स एन एंगल आई विथ नॉर्मल वेवफ्रंट ए बी, और ये राइट एंगल में है, ये राइट एंगल में है, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा। अब एम ए सी ये 90 डिग्री है, एम ए सी 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आई। सो दिस इज आई, 90 माइनस आई आई, सो एंगल बी ए सी आई हो गया यहाँ पे, और बी सी 70 है, एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, ये रे वेव नॉर्मल है। अरे समझ में आया कि नहीं? दिस इज वेव फ्रंट, दिस इज वेव नॉर्मल। क्लियर हुआ क्या? ये आई, ये 90 डिग्री होने की वजह से 90 माइनस आई, फिर से एम ए सी 90 है तो ये 90 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा आई। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल आई। उसी तरह से एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ए डी सी, ये 90 डिग्री है, एंगल मेड बाय ए डी विथ नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर, ये 90 माइनस आर, तो इधर वाला कितना हो गया? सो दिस एंगल इज आर। क्लियर हुआ क्या? अब यहां पे एडी का डिस्टेंस कितना है? C2T। अब ये जो पहला वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी में साइन आई अगर हम निकाले तो साइन आई इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर है क्या? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह से कॉस आर, इस ट्रायंगल में कॉस आर इज इक्वल टू कॉस आर ना, नहीं साइन आर ही लेंगे ना हम, काय के लिए कॉस आर लेंगे? साइन आर इज इक्वल टू अपोजिट साइड, कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल एडीसी। ध्यान दो, एबीसी ट्रायंगल का लिया, अब एडीसी ट्रायंगल में साइन आर इज इक्वल टू अपोजिट साइड एडी अपॉन हाइपोटेनियस एसी। लेट अस टेक रेशियो ऑफ दिस टू क्वांटिटीज, साइन आर अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BC अपॉन AC, AD अपॉन AC, AC AC, so it will be BC upon BC is C1T, this is, so this is C1 upon C2। क्लियर हुआ क्या? दिस इज C1 अपॉन C2। अब हमारे पास और एक रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू लैम्बडा। तो यहां पे हम C1 इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा 1 लेंगे और C2 इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा 2 लेंगे, क्योंकि दोनों केस में फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे C1 की, न्यू लैम्बडा 1 अपॉन न्यू लैम्बडा 2, सो इट विल बी लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। सो हमने स्नेल्स लॉ प्रूफ कर दिया, और हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एब्सोल्यूट ऑफ 2 अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ 1, क्योंकि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 is absolute of 2 upon absolute of 1, lambda 1 upon lambda 2, C1 upon C2, sin I upon sin R. So this is overall refraction of plane wavefront. अरे भाई जमा क्या? कुछ नहीं।